اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا 7ویں دن محمد، اور ماں نے نام رکھا احمد۔ دادا نے نام رکھا محمد، پورا عرب کا علاقہ چونک گیا، یہ نام عبد المطلب نے رکھا محمد، جس کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ حقیقت میں محمد رسول اللہ کی کائنات میں سب سے زیادہ، اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا گیا اور سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی گئی تو وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محمد نام دیکھیے، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ عربی میں محمد، اس کو سنسکرت میں اگر ہم ترجمہ کریں سنسکرت میں تو اس کو ہم لے جائیں گے، سنسکرت میں کہا جائے گا نراشنس۔ نر کے معنی انسان، ویکتی، اور آشنس کے معنی جس کی بہت پرشنسا کی گئی ہو۔ نر آشنس دو جملوں سے، دو شبد سے مل کر بنے گا، نر پلس آشنس، ملائیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ نراشنس، جس کی بہت پرشنسا کی گئی ہو، یعنی محمد، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ اب ویدوں میں محمد رسول اللہ کو نراشنس کہا گیا ہے۔ ادم جناوپشرتو نراشنسس تشوشیتے ششٹم سہسترا نویتم چکورم اروشمے دھوددمہے۔ اس سے زیادہ اسپشٹ کوئی منتر ہو ہی نہیں سکتا جس نے محمد کو نراشنس کی شکل میں پیش کر دیا ہے۔ صرف لینگویج الگ ہے، زبان الگ ہے، لیکن چیز ایک ہی ہے۔ اور ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا۔ ادم حرف ندا، آئے، ادم آئے، جنا، ادم جنا۔ ایک شبد کی میننگ میں کہیں غلطی ہو تو پوری اجازت ہے، کیس کر سکتے ہیں آپ ہمارے اوپر۔ ادم آئے، جنا جنتا، لوگو۔ گویا کہ عربی میں اگر کہنا ہو اے لوگو تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ہے لوگو۔ ادم جنا، اے لوگو، اپ شرط، غور سے سنو، اپ شرط، اپ مانی نیچے، شرط مانی کانوں کے نیچے سننا، کانوں کے نیچے سنو۔ کیا مطلب ہوا؟ کبھی کبھی آپ بولتے ہیں نا لگائیں گے تھپڑ کان کے نیچے، تو کان کے نیچے لگانے کا مطلب کیا؟ زوردار۔ اپ مانی نیچے، بولتے ہیں نا مکھ منتری، اپ مکھ منتری، مکھ منتری کے نیچے، پردھان منتری، اپ پردھان منتری، یعنی پردھان منتری کے نیچے، ادھیکش صدر پریسیڈنٹ، اپادھیکش، اپ ادھیکش، ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اپادھیکش، ادھیکش کے نیچے۔ تو اپ مانی نیچے، شرط کانوں کے، کانوں کے نیچے سنو، مطلب غور سے سنو۔ اور کوئی چیز جب یہ کہا جائے غور سے سنو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت مہتوپورن ہے۔ ادم جنا اپشرت، اے لوگو غور سے سنو، نراشنسس تشوشیتے، اس وشو میں، اس دنیا میں نراشنس آئیں گے، نراشنس آئیں گے جن کی اتنی پرشنسا ہوگی، اس تشوشیتے کہ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کی پرشنسا نہ ہوگی، ان کی اتنی تعریف ہوگی کہ ان سے زیادہ پورے وشو میں پھر کسی اور کی پرشنسا، کسی اور کی ان سے زیادہ تعریف نہ ہوگی، ان سے ادھک کسی اور کی پرشنسا نہ ہوگی۔ کیا رہ گیا؟ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی اور کا نام ہی نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ کا نام کتنا ہے آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، پورے وشو میں کتنا نام لیا جا رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ وضو بنائیے، بسم اللہ، کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ۔ وضو بنا کر ختم ہوں گے، فارغ ہوں گے، کیا پڑھیں گے؟
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन, नबी का नाम लिया जा रहा है। अजान के बाद की दुआ में क्या है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आती मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। अल्लाह के नबी का नाम लिया जा रहा है। आती मुहम्मदनिल वसीला, मोहम्मद, कितना नाम लिया जा रहा है नबी अकरम का। वुजू के बाद की दुआ में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम। अजान कितनी हो रही है इस वक्त? मेरी घड़ी में 11:30 हो रहे हैं, रात के 11:30। इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में फजर का वक्त होगा और वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर दुनिया के किसी कोने में फजर हो रही होगी तो इसी दुनिया में कहीं ना कहीं ज़ोहर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं असर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं मगरिब का वक्त भी होगा और कहीं ना कहीं ईशा का वक्त भी होगा। फिर 1 मिनट के बाद उसके मुत्तसिल शहर में टाइम होगा, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और होगा, फिर 1 सेकंड और 2 सेकंड के बाद किसी और जगह होगा। इस रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि जिस सेकंड में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी का नाम। हिंदू भाई राम को भगवान का दर्जा देते हैं, कृष्ण जी को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन देखो उनका नाम कितना लिया जा रहा है। इंडिया और श्रीलंका के अलावा और नेपाल के अलावा मुझे बता दो कि दुनिया के किस खित्ते में उनका नाम लिया जाता है। हिंदुस्तान और श्रीलंका, नेपाल भी जोड़ लो, इसके अलावा बताइए कहां नाम लिया जा रहा है। और वो भी कब? जब कोई मोटरसाइकिल से गया, चलते चलते गिर गया, चोट लगी, तब कहता हाय राम, बस तब राम को याद किया जा रहा है। या उसका बच्चा फर्स्ट डिवीजन से हरे राम, तब नाम लिया जा रहा है। यहां वुजू के बाद नाम, अजान के बाद नाम, अजानों में नाम, हर वक्त नाम। अल्लाहु अकबर कहकर अगर हमने नमाज शुरू कर दी, कोई सेकंड और कोई मिनट ऐसा नहीं जाता कि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में नमाज ना हो रही हो। अगर आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो आपको नमाज खत्म करने से पहले अत्तहियात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज में सलाम फिरने से पहले आपको दरूद पढ़ना पड़ेगा और दरूद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। गौर कीजिए कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना नाम लिया जा रहा है। तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर देखिए तो आपको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम 1-1 मिनट में, 1-1 सेकंड में लेता हुआ नजर आएगा। दुनिया के हर चप्पे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। जो नाम है मोहम्मद, जिसका माना हुआ बहुत तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, और वेदों ने जिसको निराशंस बताया है कि जिसकी इतनी प्रशंसा होगी कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की नहीं होगी। वास्तविकता यही है, हकीकत यही है कि उनसे ज्यादा किसी की तारीफ नहीं हो रही है। मखलूक में, सृष्टि में, इंसानियत में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। देख लीजिए, षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चकौरम अरुष्मेधु दद्महे। षष्टिम 60, सहस्त्रा 1000, कितना हो गया? 60,000। मीनिंग देखिए, षष्टिम 60 संस्कृत में, षष्टिम सहस्त्रा, सहस्त्रा मानी 1000, षष्टिम सहस्त्रा 60,000, नवीतम 90,
कौरम दुश्मन अरुश में धू हिफाजत करेंगे उनसे हम उनकी। षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम अरुश में धू दद्महे। कौरम मुहाजिर हिजरत करने वाला, हम उस मुहाजिर की 60,090 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ऋग ये अथर्ववेद का कांड 20 सूक्त 127 का पहला मंत्र कह रहा है। मैंने हवाला भी दे दिया। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 1। कितने दुश्मन होंगे उनके? 60,090। और वेद क्या कह रहा है? अथर्ववेद, हम उनको 60,090 दुश्मनों से उस मुहाजिर की हिफाजत करेंगे, उससे उनकी रक्षा करेंगे। अरब की कैपेसिटी, अरब की हालत, अरब की कैटेगरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की गिनती भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जंगे खैबर में 10,000 का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाना चाहता था और आपके सहाबा को, गिनती याद रखिएगा, जंगे खैबर में कितने? 10,000 दुश्मनी मिटाना चाहता है। और जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो 3,000 निहत्ते मुसलमानों पर हमला करके उनको मिटाना चाहता था। लेकिन खंदक की जंग भी आपने फतह की और जंगे खैबर भी आपने फतह की। जंगे खंदक में 10,000 दुश्मन और जंगे खैबर में 10,000। 10 और 10 कितने हो गए? 20। 40,000 रूमियों का वो लश्कर जो मदीना की ईंट से ईंट बजाने आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को निकालने के लिए आया था, खाने काबा को उखाड़ फेंकना चाहता था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह इनके मुकाबले में चंद हजार लोगों को लेकर जब निकलते हैं, इनका रौब व दबदबा जब उन रूमियों के दिलों में बैठा तो 40,000 का लश्कर तितर बितर हो जाता है। तो 40,000 रूमियों का वो दुश्मन जो मोहम्मद और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा को मिटाने के लिए मदीना में घुस गया था, आना चाहता था और मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था, लेकिन इसको शिकस्त होती है और भाग जाते हैं। 40,000 ये और उधर कितने? 20। 40 और 20 कितने हुए? 60। 60,000 दुश्मन तो ये गिनती के हो गए। अब 90 और देखिए। ग़ज़वा तबूक के मौके पर सारे सहाबा चले गए जंग करने के लिए। इस शर्त पे कुछ लोग रह रहे थे अल्लाह के नबी के साथ, यहूदी, कि आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे, हम पर कोई हमला करेगा तो आप हमारी मदद कीजिएगा। लेकिन जब दुश्मनों की तादाद देखी तो ये यहूदी पलट गए और उन्हीं का साथ देने लगे दुश्मनों का। उनकी तादाद थी 80। 13 मुनाफिक थे। 13 मुनाफिक थे जो इस्लाम कबूल किए हुए थे लेकिन दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ नहीं थे। तो 80 और 13 कितने हो गए? 93। लेकिन इन 93 में से 3 ने सच्ची तौबा कर ली थी, पक्की और सच्ची तौबा कर ली थी। उन्हीं तौबा करने वालों में काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं, जिन्होंने पक्की सच्ची तौबा की और अल्लाह ताला ने माफ कर दिया था और अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया था कि मैंने इन तीनों को माफ कर दिया। उनमें काब इब्ने मालिक भी शामिल हैं। तो 93 में 3 की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली, ये अल्लाह के नबी के साथ आ गए। तो अब कितने बच्चे? 93 में से 3 को माइनस कर दीजिए, 90। 60,000 उधर, इधर कितने हुए? 90। ये गिनती किसकी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की। और इसको कौन कह रहा है? अथर्ववेद का 20वां कांड और 127वां सूक्त का पहला मंत्र। हम षष्टिम सहस्त्रा नवीतम, हम उस
मुहाजिर को कौरम कहते हैं, अपना मुल्क, अपना देश, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर की तरफ जाने वाले मुहाजिर को। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल मक्के के दुश्मनों से परेशान जब हो गए तो आपने मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की। आप भी मुहाजिर थे, तो ये इशारा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ। यानी हम उस मुहाजिर को, और जिसकी बहुत प्रशंसा की जाएगी, यानी मोहम्मद को, नराशंस को 60,090 दुश्मनों से हम उसकी हिफाजत करेंगे। यानी 60,090 दुश्मन मिलकर भी उसका एक रोंगटा भी नहीं उखाड़ पाएंगे, उसका एक बाल भी खत्म नहीं कर पाएंगे, उसके जिस्म के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हम उस नराशंस को, हम उस मोहम्मद को 60,090 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ये मंत्र किसके बारे में उतर रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वरना हिंदू भाई बताएं, आज भी तो हिंदुओं में बहुत बड़े बड़े पंडित मौजूद हैं, वो बताएं कि 60,090 दुश्मन किसके हैं, जरा बताएं। अपने ही धर्म के किसी कोई बताए कि 60,090 दुश्मन किसके हैं। और इसके आगे वाले मंत्र ने तो और स्पष्ट कर दिया, यस्य परवाहिड़ो बधूमंतो द्युदशा। ये उसी के बाद दूसरा मंत्र है, वो ऊंट की सवारी करेगा, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। यानी वो उस देश के अंदर पैदा होगा जहां ऊंटों का चलन होगा। लीजिए, ऊंटों का चलन रेगिस्तान में है, ऊंटों का चलन अरब के अंदर था। उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी, जिसका मान सम्मान आकाश की बुलंदी को छुएगा। बधूमंतो द्यू दशा, द्यू मानी 2, दशा मानी 10 संस्कृत में। द्यू दशा, द्यू 2, दशा 10, 2 और 10 कितने हुए? 12। उसकी 2 और 10 बधूमंतो पत्नियां होंगी। इसमें कितनी चीजें बताई गई? वो कहां पैदा होगा? जहां ऊंटों का चलन होगा। और उसकी प्यारी सवारी क्या होगी? फॉर्च्यूनर नहीं होगी, स्कॉर्पियो नहीं होगी, इनोवा नहीं होगी। उसकी प्यारी सवारी क्या होगी? ऊंटनी। यानी वो ऊंट का सफर करेगा, ऊंट पर बैठेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाकायदा ऊंटों पर बैठा करते थे। बल्कि आपने जिंदगी का आखिरी खुतबा जो हज्जतुल विदा के मैदान में दिया था, अरफात के मैदान में, वो भी एक ऊंटनी के ऊपर बैठ कर दिया था। और उस ऊंटनी का नाम था कस्वा ऊंटनी था, कस्वा। उस कस्वा नामी ऊंटनी के ऊपर अल्लाह के नबी ने बैठकर हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। आपने कहा ऊंटनी पर कजावा कस दो, ऊंटनी को लाया गया, उस ऊंटनी के ऊपर आप बैठ गए और उस पर बैठकर आपने लोगों को खुतबा दिया। तो आप तो ऊंटनी का सफर किया करते थे, ऊंटनी पर बैठा करते थे। ये अगरचे घोड़े पर भी बैठे हैं, खच्चर पर भी बैठे हैं, और आपने गधे की सवारी भी की है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द। ये खूबियां थी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर कि आप मरीज की आयादत करते थे। मरीज चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, आप सबको देखने जाया करते थे। वह यशहदुल जनाजा, आप जनाजे में शिरकत करते थे, मरने वाला कोई भी हो आप उसके जनाजे में भी जाया करते थे। वह यरकबुल हिमार, आप गधे पर भी सवारी कर लिया करते थे और गधे पर बैठने में भी शर्म महसूस नहीं करते थे, आप गधे की सवारी भी कर लिया करते थे। और वह युजीबु दावतल अब्द, और मामूली गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते थे। उसके घर जाकर उसकी चटाई पर बैठकर उसके साथ खाना खाने में भी आपको शर्म महसूस नहीं होती थी। मेरे भाइयों, ये खूबियां थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। बुखारी शरीफ के अंदर ये आया है कि अल्लाह के रसूल के अंदर ये खूबियां मौजूद थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऊंटनी की सवारी महबूब सवारी थी नबी की। और ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। यानी मतलब वो कहाँ पैदा होंगे? अरब के अंदर। और तीसरी चीज, उनकी पत्नियां कितनी होंगी? 2 और 10। कितनी हो गई? 12 बीवी वाला ढूंढ ढूंढ के मर जाएं सब लोग, कोई नहीं मिलेगा। 12 बीवी वाला सिर्फ एक ही मिलेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे थापा जी बैठे हैं, पूछिए जीसस की, ईसा अलैहिस्सलाम की कोई पत्नी थी? नहीं थी। बाइबल के आधार पर उनको सूली दे दी गई, तख्ते पे ले जाकर लटकाकर उनको खत्म कर दिया गया। लेकिन हमारे कुरान के मुताबिक उनको सूली नहीं दी गई। जब उनके दुश्मनों ने उनको सूली पर लटकाना चाहा
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کے کسی دوسرے شخص کو وہاں پر پیش کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ قرب قیامت آئیں گے، دوبارہ آئیں گے، کان دجال کو ختم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ یہ قرب قیامت ان کی نشانی بتائی گئی ہے۔ اور ہمارا مذہب جس طرح محمد رسول اللہ کی عزت و احترام کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جیسس کی عزت اور احترام کا بھی حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے نبی تھے، محمد رسول اللہ بھی ہمارے نبی تھے۔ اسلام سارے نبیوں کو کے اوپر ایمان لانے کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اگر ہم محمد کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں، تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے مذہب کے اندر مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اگر آپ محمد کو نبی مانتے ہیں تو عیسیٰ کو بھی آپ کو نبی ماننا پڑے گا، موسیٰ کو بھی پیغمبر ماننا پڑے گا، اور جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان تمام نبیوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی اسلام کی اساس ہے۔ وہ تفریق بین المذاہب نہیں چاہتا ہے، وہ دنیا کے تمام مذہبوں کے درمیان نفرت نہیں